Welcome students to today's class. Today's English class in which we will see about the poem Trains by the poet Humayun Kabir. So Humayun Kabir is a well-known poet from India. So this is your poem in your book, which is divided into 5 stanzas. And each stanza is having 6 lines. Each stanza is having 6 lines. ठीक है? So I will read the poem once and then I will explain it. Mother, I sit by my window for hours on end and watch the long trains rumble past. Some are dark and journey tediously. No doors, no windows, no shining lamps. Slowly they move like huge elephants that move like shadows in the shadowy dark. This was the first stanza. Now the second one is, sometimes a train comes flashing past with many windows lit by lamps that dance and whirl. What do you read this word? Whirl. That dance and whirl with movement swift, a marriage procession with music loud, shrill whistles that rise above the din or the rhythmic beat. How to read it? Rhythmic. Or the rhythmic beat of wheels revolving fast. Third stanza. On hot afternoons, you go to sleep and with dizzy heat swoons all the world. Even the crows doze and forget to caw. Forget to caw. The dog lies in the shade with hanging tongue. I watch for hours and still the tireless trains march on and on along their iron road. Fourth stanza. Sometimes at night in my sleep I hear the low distant rumble of the train. I rub my eyes and sit upon my bed, and beneath the light of the flickering moon moves the long shadowy outline far away. Like a huge serpent. What is this? Serpent. Like a huge serpent crawling through the night. Where do all those trains go day and night? You say they bore their way through the hills. They crash through the forest and vast plains. But at the end of their restless journeying, where do they go and finally rest? Now here in this poem, the narrator, जो poet है, वो एक narrator जो poem हमें सुना रहा है, that one is a small boy who is looking at the train. Have you all seen the train? Yes, some or other time we have seen the train or we have traveled in the train. Some short journeys, some long journeys, है ना? बहुत long journeys, मतलब half day का होता है तो थोड़ा short journey हो गया. Then one day का हुआ तो थोड़ा long journey हो गया. You have started your traveling from morning to the night. तो ये थोड़ा long journey हो गया. Then sometimes you travel for more than 2 days or 3 days. That is a very long journey. तो ऐसे ही ट्रेन्स हमेशा मूव होते रहती है ना? तो जिनके घर ट्रेन रेलवे ट्रैक्स के साइड में होता है वो हमेशा देखते रहते हैं. तो सेम लाइक दैट एक बॉय है who is looking at the train continuously and बहुत curious है. He is very much curious about where the trains are coming from, where they are going, how they move swiftly, slowly, fast. सारे ट्रेन्स एक जैसे मूव करते हैं क्या? No. Some
दे क्रॉल यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते। सम मूव वेरी फास्ट, है ना। ट्रेन्स के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो कुछ एक्सप्रेस होते हैं थोड़े स्लो चलते हैं, कुछ सुपर एक्सप्रेस होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स। तो फॉर दैट वो लड़का अपनी खिड़की पे खड़े होके, अपने घर के खिड़की पे खड़े होके ही वॉचेस ऑल द ट्रेन्स पासिंग बाय एंड ही इज क्यूरियस कि वेयर दे गो, हाउ दे आर मूविंग, they are looking, how they are looking at the daytime, how they are looking at the night time, and finally ends with the question where do they go and finally rest। अगर ट्रेन्स हमेशा मूव ही होते रहते, कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे, दे आर मूविंग टू एंड फ्रो ऑल द डे एंड नाइट। अब बहुत सारी ट्रेन सेम दिखती हैं, तो इतना छोटा सा बॉय है, ही कांट अंडरस्टैंड कि वही वाली ट्रेन बार बार मूव नहीं हो रही, बहुत सारी ट्रेन है। पर वो फाइनली सोचता है कि कहीं तो वो रेस्ट करते होंगे, कभी तो वो रेस्ट करते होंगे। वो एज अ ह्यूमन बीइंग वो देख रहा है कि हम लोग बहुत इतना ट्रैवल करते हैं, चलते तो थक जाते तो रेस्ट लेते हैं, तो क्या ट्रेन्स रेस्ट नहीं करती हैं? ठीक है, सो चलो लेट्स एक्सप्लेन द पोएम। नाउ हियर व्हाट द बॉय इज सेइंग, ही इज सिटिंग एट हिज विंडो एंड लुकिंग एट द ट्रेन्स मूविंग अराउंड एंड देन व्हाट इज आस्क्ड, वो किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? टू हिज मदर। ही इज आस्किंग टू हिज मदर, आई सिट बाय माय विंडो फॉर आवर्स ऑन एंड। व्हाट इज सेइंग, मैं बहुत टाइम तक, आवर्स एंड आवर्स आई एम वेटिंग एंड लुकिंग एट द विंडो बाय द ट्रेन्स व्हिच आर मूविंग ऑन द ट्रैक्स। एंड वॉच, क्या कर रहा है वो? वॉच कर रहा है। ही इज वॉचिंग फ्रॉम हिज विंडो द लॉन्ग ट्रेन्स। हाउ द ट्रेन्स लुक, बोगीज होती हैं, छोटी छोटी बोगीज होती हैं, ऐसी बोगीज होती हैं बट एक लॉन्ग होती है ना। तो एक बोगी की ट्रेन होती है क्या? नो, देयर आर मेनी बोगीज और मेनी कैरेजेस। सो ही सेज द ट्रेन्स आर वेरी लॉन्ग। रंबल पास्ट, रंबल पास्ट मतलब वो पास कैसे हो रही है? रंबल साउंड कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रंबल हियर? रंबल मीन्स द स्ट्रॉन्ग थंडरिंग साउंड। ट्रेन्स जब मूव होती है, हम ट्रैक्स के साइड में या रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं, बहुत फास्ट ट्रेन्स मूव होके जाती है सामने से, तो कैसे सुनाई देता है ना। पूरे हमको भी थोड़ी सी वाइब्रेशंस फील होती हैं, बहुत जल्दी जल्दी जाती हैं, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं। दैट इज कॉल्ड द रंबल। जो वाइब्रेशन फील होती है वो रंबल, और उसकी साउंड भी आती है। Some are dark and journey tediously. Here the meaning of the dark is the night time, है ना। रात में कैसा हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। पर ट्रेन्स मूव करना बंद कर देती है? No, they don't stop there. They also move at the night time also. तो some are dark, अब यहाँ कलर है, रात का टाइम है, और वो कैसे दिख रही है? डार्क कलर की दिख रही है। मतलब शेडो में कोई भी चीज हमें कैसे दिखाई देती है रात में? दूर से ब्लैक कलर की, डार्क कलर की दिखाई देती है। Some are dark and journey tediously. वो कैसे जर्नी कर रही है? टेडियसली मतलब कंटिन्यूस जर्नी कर रही है, विदाउट टायरिंग, थकती नहीं है, वो चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। और नो डोर्स, नो विंडोज, नो शाइनिंग लैम्प्स। अब जो ये वाली ट्रेन होती है जिसमें कैरेजेस, जो वो आप हिंदी में बोलते हैं उसको मालगाड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो गुड्स ट्रेन होती है। तो गुड्स ट्रेन कैसे? बोगीज होती हैं, और बोगीज में कोई विंडोज नहीं होती हैं, कोई डोर्स नहीं होती है ना। जैसे ये टैंक है, पेट्रोलियम, मिल्क, ये सब जब ट्रांसफर करते हैं तो इसमें कोई डोर्स विंडोज होती हैं? नो। सो द पोएट इज सेइंग सम ट्रेन, हाउ द सम ट्रेन्स आर लुकिंग लाइक, दे हैव नो डोर्स, नो विंडोज और नो शाइनिंग लैम्प्स। उसमें कुछ लाइट भी नहीं दिखाई देती, सिर्फ इंजन की लाइट दिखाई देती है, एंड इट मूव्स। पीछे वाली जितनी भी कैरेजेस एंड बोगीज होती है वो कैसी हो जाती है? वो बिल्कुल सिर्फ डार्क शेडोज दिखाई देती हैं कि वो थकी हुई बहुत जा रही हैं, बट उसमें कोई लाइट्स, कोई डोर्स, कोई विंडोज नहीं होती। स्लोली दे मूव, कैसी मूव हो रही है ये वाली ट्रेन? वेरी स्लोली, लाइक अ ह्यूज एलिफेंट। हैव यू सीन एलिफेंट्स वॉकिंग, है ना, मूवीज में या किसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह में देखा होगा। द एलिफेंट्स मूव वेरी स्लोली। तो वैसे ही ये वाली ट्रेन्स कैसे मूव होती है? जो गुड्स ट्रेन्स हैं, दे मूव वेरी स्लोली लाइक ह्यूज एलिफेंट्स that move like shadows in the shadowy dark.
जो रात का टाइम होता है, शैडोई डार्क मीन्स शैडोज गिरती हैं कब, डार्क शैडोज कब गिरती हैं, रात के टाइम पे। तो रात के टाइम पे इन द डार्क नाइट्स दे मूव लाइक शैडोज, सिर्फ शैडोज दिखती हैं, हमें उसका कोई कलर समझ में नहीं आता, उतना ज्यादा शेप समझ में नहीं आता, बस शैडोज की तरह वो मूव होते रहती है। Now, second stanza. Sometimes a train comes flashing past. अब हम कभी स्टेशंस पे रुके हुए रहते हैं तो जो नॉन स्टॉप ट्रेन्स रहती है, जो स्टॉप पे नहीं रुकती, वो जब पास होती है तो कैसा फील होता है, हम खड़े रहते हैं और हमारे सामने सर्ट से फटाफट 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 चली जाती है। तो जब ये मूव होती रहती है तो हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ विंडोज दिखाई देती है या लाइट्स दिखाई देती है, बाकी वो बहुत फटाफट निकल जाती है। दे हैव वेरी मच ग्रेट स्पीड। तो what the poet is saying, when he was watching from his window, what he sees, कुछ तो बहुत स्लो चलती हैं and some move like a flashing light, बहुत लाइट की तरह बस इधर से आई और इधर चली गई, ऐसे दिखाई दे रही है। फ्लैशिंग मतलब लाइट के फ्लैश की तरह एक तरफ से आई दूसरी तरफ से चली गई। तो लाइट फ्लैशिंग लाइट्स वो पास हो जाती है। With many windows lit by lamps. Now in the dark time, how you can see, ये जो ट्रेन है इसकी कलर इतनी ज्यादा समझ नहीं आती है, बट यू कैन सी द विंडो लाइट्स फ्रॉम द वेरी मच फार अवे, है ना, बहुत दूर से भी आपको ये दिखाई दे देता है। फ्रॉम वेरी मच डिस्टेंस यू कैन सी नॉट द शेप ऑफ द ट्रेन बट द कैरेजेस, है ना, अलग अलग कैरेजेस दिखाई देती हैं एंड द लाइट फ्रॉम द विंडो। नाइट टाइम में अंदर लाइट जलती है तो हमें विंडोज में से लाइट्स भी दिखाई देती हैं। That dance and whirl with movement swift. कोई ट्रेन बहुत धीरे भी कभी कभी मूव होती है तो वहां भी हमें उसकी क्या दिखाई देती है, उसकी डांस दिखाई देती है। मतलब ट्रेन थोड़ा सा मूव होता है या उसकी जो व्हील्स होती हैं वो भी राउंड राउंड घूमती हैं, व्हर्ल होके घूमती हैं, तो वो हमें दिखाई देती है। देन अ मैरिज प्रोसेशन। अब ये लाइट्स कैसे दिखाई दे रही है कोई नैरेटर को, जो लड़का है वो क्या सोच रहा है इसको देख के, वो कैसा दिखाई दे रहा है उसको, अ मैरिज प्रोसेशन। मैरिज प्रोसेशन मीन्स शादी में जो बारात आती है ना, तो बारात कैसे आती है, पूरी लाइट्स लगी रहती है एक के बाद एक, सब नाचते हुए लाइट्स में बीच में से चलते हैं, तो वैसे ही उसे नाइट टाइम की जो ट्रेन है वो कैसे दिखाई देती है, लाइक अ मैरिज प्रोसेशन विथ म्यूजिक लाउड। यहाँ म्यूजिक बज रही है क्या, नो, ट्रेन की हॉर्न सुनाई देती है, ट्रेन का रंबल साउंड सुनाई देता है, उसकी व्हील मूवमेंट सुनाई देती है ना, और जो बहुत जल्दी जल्दी निकल रही है तो थोड़े हवा की भी साउंड आती है, तो वो सारी साउंड उसको कैसी लग रही है, म्यूजिक जैसी। सो ही कंपेयर्स द मूविंग ट्रेन एट द नाइट विथ अ मैरिज प्रोसेशन। श्रिल विसल्स। अ विसल मीन्स जो सीटी बजती है, जो हॉर्न बजता है ट्रेन का, वो कैसा लगता है उसको, श्रिल, है ना। श्रिल वो साउंड, जो साउंड वो निकलता है, हॉर्न की साउंड हमें अच्छी लगती है, नो, बहुत चुभने वाली आवाज होती है, तेज आवाज होती है, दैट लाउड साउंड, हियर इट इज कॉल्ड एज श्रिल। श्रिल विसल्स दैट राइज अबाउट द डीन। जो श्रिल साउंड है, जैसे ही ट्रेन आते रहती है, हॉर्न बजता है, तो एक श्रिल लाउड साउंड, एकदम ऐसी साउंड जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कानों में चुभती है, ऐसी वाली साउंड ट्रेन के आगे आगे हमको आती रहती है। और द रिदमिक बीट ऑफ द व्हील्स। रिदमिक बीट क्यों बोलता है, रिदमिक बीट जैसे हम लोग गाना सुनते हैं तो उसमें हमें ताल लय सब होती है, रिदम होता है। सो ही सेज जो रिदमिक बीट होती है व्हील्स की, अब ट्रेन में चढ़ते जो गड़गड़ गड़गड़ ऐसी आवाज आती है तो उसको वो क्या बोल रहा है, रिदमिक बीट ऑफ व्हील्स। जो व्हील्स की साउंड आ रही है, ही इज सेइंग दैट इट कम्स लाइक अ रिदमिक बीट ऑफ द व्हील्स रिवॉल्विंग फास्ट। कैसी हो रही है वो, फास्ट फास्ट रिवॉल्व हो रही है। ऑन हॉट आफ्टरनून्स, इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज, अब एक टाइम उसने देख लिया कि ट्रेन्स कैसे मूव हो रही है, वो बता दिया, फिर ट्रेन्स कैसी कैसी उसको दिख रही है, गुड्स ट्रेन दिख रही है, पैसेंजर्स ट्रेन दिख रही है, कुछ स्लो मूव हो रही है, कुछ फास्ट मूव हो रही है, ऐसी अलग अलग ट्रेन्स के बारे में बताया। नाउ इन द हॉट आफ्टरनून्स यू गो टू स्लीप। अब जैसे अभी समर वेकेशंस गए हैं, दोपहर में आप बाहर नहीं जा सकते थे धूप में, तो व्हाट यू डिड इन योर हाउसेस, you went to sleep or you have taken some nap.
तो वैसे ही वो बोलता है कि हॉट आफ्टरनून्स यू गो एंड स्लीप, यू टेक रेस्ट एट योर हाउसेस एंड विथ डिजी हीट, हीट कैसी है, डिजी फील हो रही है, यू आर फीलिंग स्लीपी, बहुत टायर्ड फील होता है, यू आर स्वेटिंग ऑलवेज, तो बहुत स्वेट निकल जाता है, बाहर बहुत गर्मी होती है, तो जैसे ही घर के अंदर आप जाते हो कूल फील होता है, तो यू फील डिजी, आपको नींद आने लगती है. सो ही सेज एंड विद डिजी हीट सून्स ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया ऐसे लग रही है कि बहुत नींद आ रही है, सब शांत है, बाहर कोई भी नहीं है, सब जगह खाली है. बट एट दैट टाइम ऑल्सो इवन द क्रोज डोज, डोज का मतलब देखो स्पेलिंग DOZE, डोज का मतलब झपकी आना, ठीक है. सो जो क्रोज होती है यानी कि जो बाहर एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दे ऑल्सो फील लाइक डिजी, क्योंकि क्या है, बाहर बहुत धूप है, गर्मी है. ड्यू टू द समर डेज दे हैव इंक्रीज्ड हीट, द क्रोज ऑल्सो डोज. यहाँ क्रोज बोला है, सिर्फ क्रोज नहीं, ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स दे डोज एंड फॉरगेट टू कॉ. फॉरगेट टू कॉ, कॉ इज द साउंड ऑफ द क्रो. तो जो आवाज निकालती है या जो उनकी हलचल होती है वो भी वो फॉरगेट कर देते हैं. क्यों? ड्यू टू द हीट एंड टायर्डनेस. द डॉग लाइज इन द शेड, जो पेड़ों की छाव होती है, कुछ शेल्टर बने होते हैं डॉग के लिए, तो डॉग ऑल्सो गो देयर एंड दे इट टेक द रेस्ट इन द शेड विथ हैंगिंग टंग. हैंगिंग टंग मीन्स वो टंग जो होती है उसकी बाहर निकली हुई होती है. क्यों? तो डॉग्स क्या करते हैं, अपने बॉडी को कूल रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जब हॉट फील होता है तो वो अपनी टंग को बाहर निकाल देता है ताकि वो जल्दी जल्दी सांस ले और उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे. तो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में भी जब क्रोज मतलब एनिमल्स, बर्ड्स सब आराम कर रहे हैं, इंसान आराम कर रहे हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉच फॉर आवर्स एंड स्टिल द टायरलेस ट्रेन्स. वो फिर भी से क्या है कि वो देख रहा है कि जो ट्रेन है वो बाहर अभी भी मूवमेंट कर रही है इन द हॉट डेज ऑल्सो. मार्च ऑन एंड ऑन, मार्च मीन्स दे आर वॉकिंग. मार्च का मीनिंग होता है वहां वॉकिंग करना, बट यहाँ वॉकिंग तो नहीं करती है ट्रेन, ट्रेन मूव कर रही है. ऑन एंड ऑन, बिना थके, बिना रुके, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कभी भी ट्रेन मूव ऑन देयर टाइम. अलोंग देयर आयरन रोड, अब ट्रेन की रोड कैसी होती है, दे मूव ऑन द ट्रैक्स. जो ट्रैक्स होती है दो साइड की, ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना. सो दे मूव ऑन द ट्रैक्स. तो ये ट्रैक्स किस चीज से बनी होती है, आयरन. सो द पोएट इज सेइंग दे मूव ऑन देयर आयरन रोड, ओके, मूविंग ऑन देयर ट्रैक्स. नेक्स्ट, समटाइम्स एट नाइट इन माई स्लीप आई हियर. अब रात में तो हम सो जाते हैं, बट ट्रेन सोती हैं क्या? No, they keep on moving. So he says sometimes at the night time when I get awake, I hear the sound of the train, the low distance rumble of the train. बहुत दूर से आती हुई rumble sound सुनाई देती है. rumble यानी जो ट्रैक्स पे मूव होती है जब ट्रेन, जो साउंड सुनाई देती है तो बहुत दूर से मुझे सुनाई देती है. I rub my eyes and sit upon my bed. So जो नींद टूट गई उसकी, he became awake and he sit upon his bed and listen to the rumble of the train. And beneath the light of the flickering moon, beneath means under और flickering means चमकता हुआ, क्या? moon. तो जो flickering आसमान में चमकता हुआ moon है, under that means under the moonlight, what he sees moves the long shadowy outline far away. क्या दिख रहा है उसको रात के टाइम पे, जब मून है, मून की लाइट में उसे क्या दिखाई दे रहा है नीचे, अ शैडोई लाइट. क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो ट्रेन में भी लाइट ऑफ हो जाती है, तब वो लाइट, ये विंडोज से लाइट नहीं दिखाई देती है, तो तब हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ एक शेडो जैसा जाते हुए दिखता है. सो द पोएट सेज लॉन्ग शैडोई आउटलाइन, जो दूर से जाती हुई ट्रेन दिख रही है, कैसे दिख रही है, लॉन्ग तो है ही बट शेडो जैसे ही दिखाई दे रही है. लाइक अ ह्यूज सर्पेंट. व्हाट इज सर्पेंट? स्नेक्स जो मूव्स होती है इनटू इंसेक्ट्स. लाइक अ ह्यूज सर्पेंट क्रॉलिंग थ्रू द नाइट. लंबा सा सांप क्रॉल कर रहा है एट द नाइट टाइम. ऐसे वो कंपेयर कर रहा है
नाइट में जो ट्रेन्स मूव होती हैं शैडो जैसे, उसको किससे कंपेयर कर रहा है? विद द ह्यूज सर्पेंट, है ना, बहुत बड़ा सा सांप मूव हो रहा है धीरे धीरे से, ऐसा पोएट को लगता है। चलो, द लास्ट स्टैंजा इज where do all those trains go day and night? Now the poet thinks that रात दिन तो ये ट्रेन्स चल रही हैं, but where do they go? मुझे तो यहाँ से यहाँ जाते हुए दिख रही, यहाँ से यहाँ जाते हुए दिख रही, but ultimately where they go? You say they bore their ways. Bore means रास्ता बनाना, खोद के रास्ता बनाना। पर ट्रेन्स अपना रास्ता खुद बनाती है? No, ऑलरेडी उनके ट्रैक्स बनी हुई होती है, उस पे वो दौड़ते हैं। You say they bore their way through the hills. अब you यहाँ कौन है? मदर से बात कर रहा है वो, तो मदर ने उसको समझाया था कि रास्ते से वो जाते हैं। तो poet says their way through the hills. वो कहाँ से रास्ता बनाते हैं? Through the hills. जैसे कभी कभी आप देखोगे कि हिल्स के बीच में से कि ऐसे ये बनी हुई होती है, गुफाएं बनी हुई, तो उसके अंदर से ट्रेन जाती हैं। ओके, और कभी कभी ऐसे भी मिल जाता है आपको साइड से, पहाड़ के साइड से जाते हुए। तो दे बोर देयर वेज फ्रॉम द थ्रू द हिल्स, दे रोर ओवर ब्रिजेस। अब ब्रिजेस के ऊपर से जब जाती है तो जोर से हॉर्न बजाते हुए जाती है। सो रोर करते हुए मतलब बहुत जोर से आवाज आती है उसकी। सो द पोएट सेज दे रोर ओवर द ब्रिजेस अक्रॉस द माइटी स्ट्रीम्स। माइटी मीन्स बहुत बड़े बड़े क्या है? स्ट्रीम्स, जो रिवर्स होती हैं। अब उसमें बहुत बड़ी बड़ी ब्रिजेस बनी हुई होती हैं, एंड ओवर देयर द ट्रेन्स रन अबाउट देम, एंड बहुत जोर जोर से उसकी हॉर्न बजाते हुए, रोर करते हुए, रंबल करते हुए वो जाती है। दे क्रैश थ्रू फॉरेस्ट एंड वास्ट प्लेन्स। वो कहाँ से जाती है? फॉरेस्ट में से भी जाती है। देखो आप लोग यहाँ पर साइड में आपको फॉरेस्ट बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है, तो बड़े बड़े फॉरेस्ट के बीच में से जाती है। देन प्लेन्स के बीच में से भी जाती है। प्लेन्स मीन्स ग्रासी लैंड्स, वास्ट ग्रासी लैंड्स, बड़े बड़े मैदान, दूर दूर तक आपको घर शहर कुछ नहीं दिखाई देगा, ओनली यू कैन सी द ग्रास लैंड्स, दीज आर कॉल्ड द प्लेन्स। तो वो हिल्स से जाती है, वो फॉरेस्ट से जाती है, वो प्लेन्स से जाती है, तो अलग अलग लैंडफॉर्म से वो गुजरते हुए जाती है और चलते ही रहती है। बट एट द एंड ऑफ देयर रेस्टलेस जर्नी where do they go and finally rest? अब वो जब जर्नी कर रही है and they never get tired, तो finally where they go and rest? कि एक जर्नी तो उसने खत्म कर ली, पर वो रेस्ट कर रहा है क्या? No. The poet जब वो देख रहा है साइड से, तो उसे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन से वो रेस्ट नहीं कर रही है। ट्रेन्स अल्टीमेटली दे गो टू देयर डेस्टिनेशन, जो भी स्टेशन पे उसको जाना होता है वहां जाके वो रेस्ट करती हैं, बट फिर वापस से वो मूव होना शुरू हो जाती हैं। सो हियर द पोएट सेज कि दे मूव ऑन एंड ऑन एवरी डे एंड नाइट, एंड दे नेवर गेट टायर्ड। सो हियर द पोएम एंड्स, and what this poem is, the poet or the narrator, what he wants to say? He wants to say, ये ट्रेन के बारे में बताया है, बट ट्रेन नहीं, ये अपने लाइफ से जोड़ के देखना है कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी टायर्ड फील करके अपना काम छोड़ नहीं देना है। अरे आज मैं टायर्ड हूँ, मुझे आज ये काम नहीं करना है, मैं कल कर लूंगा, फिर कल का परसों हो जाता है, परसों का बाद में हो जाता है, इट नेवर कम्स। So you should not get tired of your work and do it on regular intervals. आज का काम आज ही करना चाहिए, उसे कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। This is the message from this poem. Okay? चलो, this is all the poem is of our part. Thank you.